نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو بیسک قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 2 میں۔ آج بیچ 2 کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے اسم کے بارے میں اسٹڈی سٹارٹ کر دی تھی۔ اسم کے 4 پہلو سیکھے تھے ہم نے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنس، جینڈر۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں کلمے کی اقسام۔ اسم کسی جگہ، شخص یا اس کی صفت کا نام، کام کرنے کا مفہوم پایا جائے مگر زمانہ نہیں، جیسے چل رہا۔ فعل، ورب، کام کا کرنا ظاہر ہو اور تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے ہو گیا۔ زمانہ ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک۔ حرف، پریپوزیشن اینڈ کنجوگیشن، معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر ظاہر ہوں، جیسے سے، طرف، میں۔ ہم نے اسم کی اسٹڈی سٹارٹ کی ہے، تو اسپیکٹس آف ناؤن کیا ہیں، 4 ان کو دیکھ لیجئے۔ یعنی آپ کو کسی بھی اسم کے بارے میں کن 4 چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے، آپ کو اس کے بارے میں اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے، تو اس کو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو کسی بھی اسم کی جنس یعنی اس کی جینڈر معلوم ہونی چاہیے کہ وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس اسم کا جو عدد ہے یعنی اس کا نمبر وہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو اسم ہے وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یعنی ڈوئل ہے، یا جمع ہے۔ پھر آپ کو اس کی وسعت یا کیپیسٹی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ فورتھ اینڈ لاسٹ، آپ کو اس اسم کا اعراب یعنی اسٹیٹس معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسم رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے۔ تو آج ہمارا سب سے پہلا ٹاپک جو اس میں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے جنس۔ ان کو ہم ایک ایک کر کے کور کریں گے انشاءاللہ، اور زوم میں پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی کلاس میں جو اپنی ایکٹیویٹیز کے تھرو ہے وہ بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنس یا جینڈر کیا ہے، پہلے اس کو دیکھیں کہ جنس سے مراد کسی اسم کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ جیسے اردو اور انگلش میں بھی جنس کے لحاظ سے اسما کی تقسیم ہے، اردو میں مذکر اور مؤنث ہیں، 2 ہی ہیں اس کی تقسیم میں، یعنی ایک اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ سیم انگلش میں بھی اسی طرح اسم یا تو میسکولن ہوگا یا فیمینن ہوگا۔ تو عربی زبان میں بھی جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اب مذکر چونکہ اصل ہے، یعنی کوئی بھی اسم بلٹ ان مذکر ہوگا، اس لیے مذکر الفاظ کی کوئی خاص علامت یا پہچان نہیں ہوتی، لیکن مؤنث کے لیے آپ کو پہچان بتائی جائیں گی، ابھی آگے ہم اس کو سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ عربی زبان میں ہر ایک اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے سامنے کوئی بھی آیت آتی ہے، کوئی بھی جملہ آتا ہے، کوئی بھی ٹیکسٹ آتا ہے عربک کا، تو سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اسم مذکر ہے۔ اب اس کی جب جینڈر دیکھنی ہے تو وہ ہم آگے آپ کو اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کیسے دیکھیں گے کہ وہ
मुजक्कर मोनस कैसे है, ठीक है। लेकिन पहली बात ये कि ज्यादातर मुजक्कर अस्मा है। अब जीन्स की दो तरह से तकसीम जो है वो है, एक मुजक्कर मेल, दूसरी है मोनस फेमिनिन। आप मोनस की आगे से अकसाम देखिए कि आप ये इस चार्ट को ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा कि मोनस को दो तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हकीकी मोनस यानी रियल फेमिनिन, वो मोनस जिसके मुकाबले में मुजक्कर मौजूद हो हकीकी मोनस कहलाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी इसम के मुकाबले में मुजक्कर मौजूद होगा तो हम उसे हकीकी मोनस कहेंगे। अ, अगर मैं आपसे कहूँ माँ, तो माँ के मुकाबले में मुजक्कर लफ्ज क्या होगा? बाप। बेटी, इसके मुकाबले में होगा बेटा। बहन, इसके मुकाबले में भाई। और औरत, इसके लिए होगा मर्द। तो ये है मोनस के साथ, जो मोनस है उनके साथ हमें मुजक्कर मिल रही है वो हम हकीकी मोनस में लेकर आएंगे, ठीक। सिंपल सी डेफिनेशन है बस कि वो मोनस जिसके मुकाबले में मुजक्कर मौजूद हो हकीकी मोनस कहलाता है। अब दूसरा क्या है? गैर हकीकी मोनस, अनरियल फैमिली। ये अरबी जुबान में ज्यादा है। वो मोनस जिसको मोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो और जिसके मुकाबले में मुजक्कर मौजूद ना हो, गैर हकीकी मोनस कहलाता है। पहले में हमने क्या देखा कि उसमें मोनस के मुकाबले में हमें मुजक्कर मौजूद था हमारे पास, लेकिन अब ये वो मोनस हैं जिनके लिए कोई मुजक्कर मौजूद नहीं है, तो वो गैर हकीकी मोनस कहलाते हैं। अब इसके आगे से इसकी भी दो ब्रांचेस हैं, इसकी भी दो अकसाम हैं। नंबर एक, अलामती मोनस, फॉर्मल फेमिनाइन। ये क्या है? आपको इसके इस वक्त नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें इस जो ऐसा इसम होगा, ऐसा मोनस जिसमें कोई ना कोई लफ्जी अलामत मौजूद होगी, तो वो अलामती मोनस कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा है समाई मोनस, इर्रेगुलर फेमिनाइन। ये कौन से हैं कि जिन्हें अरब ने, अरब यानी क्योंकि अरबी जुबान अरबों की है, ये उनकी मदर लैंग्वेज है, तो जिन ऐसे कुछ अस्मा हैं जिनको अरब मोन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखिए। मोन्नस की वो किस्म जिसे अहले जुबान या अरब के रहने वाले मोन्नस लिखते और बोलते हैं। इनमें ना तो मोन्नस की कोई अलामत मौजूद होती है और ना ही ये हकीकी मोन्नस यानी रियल फेमिनाइन में से होते हैं। आई होप कि आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली हो। मैं इसको रिपीट कर दूं आपको कि अलामती मोनस क्या है कि ऐसा मोनस जिसमें कोई ना कोई लफ्जी अलामत मौजूद होगी, वो अलामती मोनस कहलाएगा। और समाई मोनस क्या है? मोनस की वो किस्म जिसे अहले जुबान या अरब के रहने वाले मोनस लिखते और बोलते हैं। इनमें ना तो मोनस की कोई अलामत होती है और ना ही ये हकीकी मोनस होते हैं। अब हम इनको स्टडी करते हैं आगे। ये पूरा आपके सामने चार्ट है। जिन्स दो तरह से तकसीम हो रही है, मुजक्कर और मोनस। मोनस की दो अकसाम है आगे, हकीकी मोनस और गैर हकीकी मोनस, ठीक है। हकीकी मोनस आपने आपको मैंने बता दिया, गैर हकीकी बता दिया। गैर हकीकी की फिर आगे से दो ब्रांचेज आ रही हैं कि अलामती मोनस और समाई मोनस, ठीक। अब देखिए हकीकी मोनस, इसकी एग्जांपल्स देखिएगा। उम्मुन, अब्बुन, ठीक है। उख्तुन, अखुन, बिन्तुन, इब्नुन। अब उम्मुन कहा माँ, तो इसका मुजक्कर था अबुन। उख्तुन बहन, तो इसका मुजक्कर है अखुन भाई। बिन्तुन बेटी, और इसका मुजक्कर है इब्नुन बेटा। ये हकीकी मोनस की एग्जाम्पल्स है। अब अलामती मोनस देखिए कि जिसे या तो आप फेमिनिन बाय साइन भी कह सकती हैं अपने
आसानी के लिए इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, आखिरी हर्फ पर ताए मरबूता होगी, गोल ता होगी, जैसे जन्नतुन। आखिरी हर्फ पर या पर खड़ी जबर होगी, ठीक है। हुस्ना, सुगरा। और यहाँ आपको आखिरी हर्फ के बाद अलिफ और हमजा पेश ऊ मिलेगा। हम राउ, जरकाउ, सहराउ। आपको ये इस तरह से मिलेगा। आगे देखिएगा, यानी आपको अलामती मोन्नस, आपके सामने कोई मोन्नस आ जाए तो आपने उसमें से इस तरह से देखना है कि ये आपको उस किसी भी इसम में यूं गोल तान मिल जाएगी तो आप कहेंगी ये अलामती मोन्नस है, ठीक है। या आपको मिल जाएगी अगर ये या पर खड़ी जबर, इसे अलिफ मकसूरा कहा जाता है, जैसे हुस्ना, सुगरा। तो इसको भी आप अलामती मोनस की कैटेगरी में लेके आएंगी। अगर आपको आखिरी हर्फ हमजा अलिफ और हमजा पेश ऊ मिल जाता है, जिसे हम अलिफ ममदूदा कहते हैं, तो ये आप इसको, ये भी अलामती मोनस की अलामत है। टर्म्स से घबराइएगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें याद हो जाती हैं। ताए मरबूता को आप गोलता कह सकती हैं, और जो ये आपके सामने अलिफ मकसूरा आ रहा है, इसको आप या पर खड़ी जबर के साथ याद रख सकती हैं। इस तरह से आप कोई ना कोई अपने लिए निशानी जो है उसको रख लीजिए, तो इससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शंस। आपकी माशाल्लाह से ग्रामर स्टार्ट हुई है, तो अपने जहन को आपने वाइड रखना है, एक्सेप्शंस के लिए तैयार रहना है। क्योंकि कोई ना कोई जुबान में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आई आती हैं, कुछ ऐसे रूल्स आते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं। तो कुछ अस्मा ऐसे होंगे जिनके आखिर में गोल ता होगी, लेकिन वो मुजक्कर होंगे। आपको, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो अलामती मोनस है उसमें गोलता उसकी इंडिकेशन है, उसके आखिर में गोलता होगी तो वो अलामती मोनस होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि कुछ अस्मा ऐसे होंगे जिनके आखिर में गोलता होगी, लेकिन वो मुजक्कर होंगे। ठीक, इसकी एग्जाम्पल देखिए। हुज़ैफातु इसम अलम है, किसी का नाम है, प्रॉपर नेम है। खलीफातुन डेजिग्नेशन है, ओहदा है। कैलिफ, अल्लामतुन ये भी डेजिग्नेशन है, ओहदा है। ठीक है, स्कॉलर को कहा जाता है। उसामातु मुजक्कर नाम है। मुआवियतु मुजक्कर नाम है। तलहातु मुजक्कर नाम है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा कि खलीफातुन और अल्लामतुन इन पर तनवीन आ रही है, क्योंकि ये डेजिग्नेशन है किसी मुजक्कर के मतलब उस तरह से हम उसको एज ए नेम नहीं किसी का रख सकते। ठीक, आगे देखिए, मोनस की आइडेंटिफिकेशन। अब क्योंकि हमने पढ़ा मोनस की अकसाम है, ठीक है। पहले एक हकीकी और फिर गैर हकीकी और गैर हकीकी की फिर आगे से अकसाम थी। तो अब हम वो देखते हैं कि हम, हमारे सामने अगर कोई इस्म आ जाता है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। मोनस को पहचानने का तरीका नंबर वन, लफ्ज के मायने पर गौर करें और मुजक्कर तलाश करें। शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, लेकिन बाय द टाइम आपको अस्मा की पहचान हो जाएगी, फिर आपको ये इस तरह से स्टेप्स नहीं लेने पड़ेंगे। अभी आपको समझाने का ये तरीका, इसलिए ये एक जो है अडॉप्ट किया इस तरह से मैंने तरीका कि आपको मुजक्कर और मुन्नस को पहचानना आ जाए। ठीक है। लफ्ज के मायने पर गौर करें और मुजक्कर तलाश करें। अब आपके सामने अगर आता है उम्मुन, तो आप उसका मायने गौर करेंगी माँ, तो फिर आपके जहन में आएगा अच्छा इसका तो मुजक्कर मौजूद है। अबुन, बाप। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से पहला स्टेप। ठीक,
अब मोनस की पहचान का दूसरा तरीका देखिए। इसम में कोई लफ्जी अलामत मौजूद हो, यानी इसमें कोई ऐसा हर्फ हो जिसको देखकर हम पहचान सके कि ये मोनस है। या तो उसमें ताई मरबूता होगी, या उसमें अलिफ मकसूरा होगी, या अलिफ ममदूदा होगी। तो आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक मिल जाती है। अगर इंडिकेशन आपको, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो अलामती मुन्नस है। पिछले में अगर आपको मिली, तो आप पहले तरीके में तो आप उसे कहेंगे ये हकीकी मुन्नस है। अगर आपको हकीकी मुन्नस की कैटेगरी में नहीं मिला, तो आप फिर दूसरी कैटेगरी की तरफ जाएंगे। आप कहेंगे अच्छा देखती हूँ इसमें कोई अलामत है। अगर आपको ये अलामत मिल जाती है, तो फिर आप कहेंगे अच्छा नहीं ये अलामती मुन्नस है। ठीक। जैसे सॉरी, इसकी एग्जांपल आप लिखिएगा, जन्नतुन। जन्नतुन, उसमें गुणता आ रही है, तो वो आपका अलामती मुन्नस हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप सुगरा, जैसे अभी मैंने जो पीछे वाली एग्जांपल्स हैं उनको आप अपने इधर भी लिख सकती हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है। आगे देखिए। मोनस की आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ये अलामात तीन हैं। सॉरी, ये आगे आपके सामने स्लाइड आ गई है बिल्कुल। इसम के आखिरी हर्फ पर गोल ता हो, जैसे जन्नतुन। ठीक है। हैवानतुन। या के ऊपर छोटा सा अलिफ है, ये अलिफ मकसूरा कहलाता है। ऐसे नाम जैसे हुस्ना, सुगरा, कुबरा। तीसरी अलामत क्या होगी? इसम के आखिर पर अलिफ और हमजा हो, जैसे हमराउ, जरकाउ। ठीक है। ये तीनों, ये आप चार्ट जो है इस तरह से इसी पॉइंट्स को ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। तो दो स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए। अगर हमें मायनी में, हमने मायनी पे गौर किया और हमें पता चल गया कि इसका मुजक्कर मौजूद है, तो बात वहीं खत्म हो गई। अगर वहां हमें नहीं मिला, तो फिर हम अलामती मोनस की कैटेगरी की तरफ चलेंगे। फिर हम ये तीनों अलामात चेक करेंगे बारी बारी। बोलता हो गई, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है डन हो गया, ये मोनस है। अच्छा, आपको बोलता नहीं मिली, फिर आप वो अलिफ मकसूरा को देखेंगे, अगर है तो फिर भी आप कहेंगे अच्छा ये अलामती मोनस है। फिर उसके बाद अलिफ और हमजा को ढूंढेंगे, अगर नहीं है। अगर इन तीनों में से आपको कोई एक भी उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं नजर आती, तो आप ये स्टेप, आपका ये भी स्टेप हो गया, डन हो गया। अब आप जाएंगी आगे मोनस को पहचानने का तरीका नंबर 3, यानी समाई मोनस की तरफ। अहले जुबान के इस्तेमाल पर मौकूफ करेंगी, यानी फिर आप देखेंगी कि क्या ये समाई मोनस में से है। तो समाई मोनस जो है, उनकी लिस्ट अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह, तो हम उसको भी देखते हैं। तो समाई मोनस की आपको मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी। सिफात को मुजक्कर से मोन्नस बनाना। सिफात क्या होती हैं? एडजेक्टिव्स। ठीक है। अरबी में सिफात या एडजेक्टिव्स भी मुजक्कर और मोन्नस मिलेंगे। यानी जैसे देखिएगा, मसलन उर्दू में हम कहते हैं अच्छा अच्छी, बुरा बुरी, वगैरह। ठीक है। तो इसी तरह अरबी में भी जो सिफात हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वो मुजक्कर और मोनस दोनों में आपको मिलेंगे। अब उनको बनाने का तरीका क्या है? ठीक है। नंबर 1 स्टेप आप क्या करेंगी? इसम के आखिरी हर्फ पर जबर देना है। आपको इसम के आखिर पर तनवीन मिलेगी, आपने उसे ड्रॉप करके जबर लगा देनी है। नंबर 2, गोल ता का इजाफा कर देना है। ताए मरबूता का इजाफा कर देना है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स में, हसनुन। तो हमने क्या किया? हसनुन की तनवीन हटाकर जबर लगा दी, हसना, और ताय मरबूता का इजाफा कर दिया, हसनतुन। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन की तनवीन हटाई, जबर लेके आए, मुस्लिमा, और फिर गोलता का इजाफा किया, मुस्लिमतुन। सॉलिहुन, सॉलिहुन की पेश हट सॉरी तनवीन हटाएंगे, और फिर हम आखिर में वहां पे उसकी जगह पर जबर ले आएंगे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सॉलिहतुन। अच्छा, जो हमने अभी एक्सेप्शंस सीखी, मैंने आपको वो दिखाई थी, तो वहां पर आप एक इसम लिख लीजिए, माऊ। मीम अलिफ मा हमजा पेश ऊ, माऊ।
ये इसका मतलब होता है पानी, मुजक्कर होता है ये, ठीक है। ये सब मुजक्कर होता है क्योंकि इसके आखिर में अब देखिए वो आ रही है हमजा और पेश। तो आपने इसे मोनस की कैटेगरी में नहीं लेके जाना। पानी, वाटर, ठीक है। आपको शायद नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे मैंने लिख दी है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि ये पानी है और ये मुजक्कर होगा, ये मुजक्कर इस समय। अच्छा, क्योंकि ये देखिए इसको आप इसके आखिर में आपको अलिफ ममदूदा मिल रहा है, तो ये आप इसे मोनस की कैटेगरी में नहीं लेकर जाएंगे, ठीक। अच्छा, आप मुजक्कर से मोनस बनाना। यही कायदा बाज दूसरे अस्मा की मोनस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी पहले हमने देखा कि एडजेक्टिव्स को, सिफात को कैसे मुजक्कर से मोनस बनाया जाता है। अब हम इसी तरह से आगे देखते हैं कि अगर हमें हमारे पास कोई और इसम मुजक्कर आ जाए तो हम उसको किस तरह से जो है मोनस बनाएंगे। तो क्या करना है, हमने हमने सेम वही पैटर्न लेकर आना है कि आपने तनवीन हटानी है, उसकी जगह जबर का इजाफा करना है और फिर जबर लगाकर गोल ता का इजाफा करना है। उस्ताजुन, उस्ताजतुन, तल तिलमीजुन, सॉरी, इसको तिलमीजुन कीजिए। तो तिलमीजुन, तो ये आपका आ जाएगा तिलमीजतुन, ठीक है। तनवीन हटाई, जाल पर जबर का इजाफा किया और आगे साथ में गोल ता का इजाफा कर दिया। तिफलुन, तिफलातुन, उस्ताजुन, उस्ताद टीचर, तिलमीजुन शागिर्द, तिफलुन बच्चा, इब्नुन बेटा, इब्नातुन बेटी, ठीक है। जब भी आपको किसी मुजक्कर इस्म की मोनस बनानी लगे तो आप इस तरह से उसको, ये वाला जो मेथड है अडॉप्ट करेंगी। तनवीन ड्रॉप करेंगी, जबर लेकर आएंगी उसकी जगह पर और गोल ता का इजाफा इससे कर देंगी, ठीक है, तनवीन के साथ। आगे देखिए। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा कि रंगों की भी मोनस होती है, ठीक है। जिस तरह से आ, सिफात की हमने मोनस बनाई, तो इसी तरह रंगों की मोनस होती है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना, नीला नीली, या हरा हरी। तो इस तरह से अरबी में रंगों की भी मोनस है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम, कि अफजरू, ग्रीन कलर, सब्ज, तो इसका फजराओ, ठीक है। आखिर में आप जो है वही जो है इसको अलिफ ममदूदा का इसके इजाफा कर देंगे, ठीक है। आगे है असगरू, असफरू, असफरू येलो पीला, सफराऊ असवदु काला, सऊदाऊ अजरकू जरकाऊ, असवदु ब्लैक, अजरकू ब्लू। अब यजू वाइट, बैजाऊ, ठीक है। अब मैं ये उसको वाइट से नहीं लिख सकती थी कि वो ये आपको शो नहीं होना था। अहमरू रेड, लाल या सुर्ख, हमराऊ। तो ये थी रंगों की मोहम्मद। इसको आप याद नहीं भी करेंगी तो कोई नहीं, आप इसको अपना इसको लिख लीजिएगा। जब हम आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह तो ये आपको खुद से याद होती जाएंगी, ठीक है। समाई मोनस, ये समाई मोनस का चार्ट है। इसमें ये आते हैं नंबर 1 पर हवाओं के नाम, सरसरुन, सरीहुन, बादुन, समूमुन। आपने कुरान पाक में ये पढ़े होंगे इंशाल्लाह। नंबर 2 पर शराब के नाम, खमरुन, खरतूमुन। आग के नाम, नारुन, जहन्नमु, जहीमुन, सईरुन, सकारुन। मुल्कों के नाम, मुल्कों के नाम भी समाई मोनस में आते हैं। मक्कातु, पाकिस्तान, मिस्र। मुल्कों और शहरों के नाम आप इसको लिख लीजिएगा।
नंबर 5 पे जिस्म के अज़ा, यानी पेयर्ड, जो पेयर्ड बॉडी बात आपके पार्ट्स हैं, जैसे आंखें दो की शक्ल में, जो जोड़े की शक्ल में जिसे कहा जाता है, यदुन हाथ, कदमुन पाँव, उज़नुन कान, अयनुन आंखें, और मुतफर्रिक अस्मा, कुछ अस्मा ऐसे हैं कि जो आ, समाई मोनस की कैटेगरी में आते हैं। उसमें समाउन आसमान, ठीक है, अर्जुन जमीन, शमसुन सूरज, नफ्सुन नफ्स, दारुन घर, असा यानी वो जो लाठी या छड़ी। तो ये समाई मोनस का चार्ट था, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी आपको, इसको आप पढ़ेंगी अच्छी तरह तो आपके जहन में बैठ जाएंगी। बाकी ऐसी चीजें ये प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आगे आपको याद होती जाएंगी। जी, आप प्रैक्टिस विद स्टूडेंट्स हैंड रेज कीजिएगा प्लीज आप लोग, तो हम इसको जल्दी से मुकम्मल करते हैं अपनी क्लास में। सोबिया राजा प्लीज टेक योर माइक। जी मैम। जी, अच्छा, मुजक्कर अस्मा को मोन्नस में तब्दील कीजिए। आपको मेथड याद है, रिपीट कर सकती हैं? मैम जी, आखिरी हुर्फ को जबर दे के तो हमने ताय मरबूता जो है वो लगा देनी है। मुनाफिकुन, मुनाफिकतुन। वेरी गुड, आगे कीजिए। मुशरिकुन, मुशरिकतुन। एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीकी। आगे देखते जी हैं, बेनजीर परवीन प्लीज टेक योर माइक। बैच 2 की स्टूडेंट्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? जी कीजिए, मैं आपको शो करती हूँ बेनजीर जी। फासिकुन, खाशिकतुन। फासिकातुन, गुड। एक और कीजिए, खाशियुन। खाशिकत, खाशिउन। नहीं, मोनस बनाइए। खाशियतुन। खाशियातुन, गुड, एक्सीलेंट। आगे हम बुलाते हैं बारकल्लाहु फीकी, अ, मैया की बिल है। लाइबा। लाइबा प्लीज चेक योर माइक। लाइबा आ जाइए सामने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी लाइबा चेक कीजिए, राजिउन। राजिअतुन। एक्सीलेंट, लौटने वाली, ठीक है, ओके। जी। एक और कीजिए आप, तय्यबुन। तय्यबतुन। एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीकी। नेक्स्ट बुलाते हैं, जज़ाक। अ, शौकत आरा, प्लीज चेक योर माइक। आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी शौकत आरा जी, चेक कीजिए। सादिकुन। शौकत आरा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप, मरियम वकास आप आ जाइए, उनको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। जी, सादिकतुन। शाबाश, एक्सीलेंट। वन मोर, खालिदुन। खालिदतुन। हाँ जी, खालिदुन, एक्सीलेंट। चलो, बारकल्लाहु फीकी। नेक्स्ट आ जाइए, तहसीन जी प्लीज चेक योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तहसीन जी, साइमुन। जी, साइमतुन, माशाल्लाह। लास्ट, साबिरुन। साबिरतुन। साबिरतुन। चलो, बारकल्लाहु फीकी, एक्सीलेंट जी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। आपके सामने मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा आएंगे। जो जो इसम आता जाएगा आप उसको अलग अलग करती जाएंगी। मैं ईच स्टूडेंट टू अस्मा पूछ लूंगी, ठीक है? तो निकत फातिमा प्लीज चेक योर माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी निकत जी, आपको शो हो गया है। अल कुरआनु। मुज़क्कर। शाबाश। नेक्स्ट देखिए, उसामतू। मुज़क्कर। एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीकी। समीना जी प्लीज चेक योर माइक। नौरीन कमर रेडी रहिएगा आप आगे। समीना जी, मैं अपने माइक पे देखिए, आपको रिक्वेस्ट भेजी है अनम्यूट करने। नौरीन आप आ जाइए, मैं उन्हें आपको बात करती हूँ।
नौरीन कमर, आ जाइए शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम। शमसुन, शमसुन जो है वो मोनस है, ये समाई मोनस है। एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीकी। एक और कीजिए। बैतुन, बैतुन ये भी समाई मोनस है। नहीं, बैतुन मुजक्कर, सॉरी, बैतुन मुज़क्कर, 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 वो यस दारुन मुज़क्कर। है घर, ठीक है, याद जी रखना है जी बात। जी बिल्कुल। ठीक है, बारकल्लाहु फीकी, जी एक्सीलेंट। ओके जी, नेक्स्ट मेरे जी। पास है समीना जी, चेक कीजिए प्लीज माइक अप। अच्छा चलिए, शरीफा जी प्लीज आ जाइए। शरीफा तस्नीम, आ जाइए शरीफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए शरीफा, ज़ैनबू, ज़ैनब मोहन्नस है। मुअन्नस है, एक्सीलेंट। एक और देखिए, वलदुन, वलद मोहन्नस है। वलदुन लड़का, लड़का, ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर। एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीकी। नेक्स्ट आ जाइए मेरे पास नबीला नाज, प्लीज चेक योर माइक। नबीला जी आ जाइए। रजिया, रजिया, रजिया जी आ जाइए। चले बुशरा, आपका आप तीनों का अनम्यूट हो गए। चले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व नबीला नाज। बरकातहू। एक मिनट, पहले नबीला कर लें, फिर रजिया कर लें, और फिर बुशरा। बुशरा और रजिया भी आप खामोश रहेगा। जी नबीला जी कीजिए। दारुन, दारुन मुजक्कर। दारुन, अभी बताया मैंने इनको। दा दारुन मुअन्नस। कौन सा? स- कौन सा? समाई। समाई, तुक्का लग गया आपका। अच्छा। खलीफातुन, बताइए। खलीफा तो ये मुजक्कर है। लेकिन ताइबर बुता लगी हुई है साहब। नहीं, इस पर भी दो पे दो सॉरी तनवीन है ना। हम्म, तो तनवीन, ताइबर तो बुता ये तो लगे मुजक्कर ना, हो गया। ये एक्सेप्शंस में थे। तामर बुता। ठीक है। जी जी बिल्कुल, इस पे तामर बुता लगा हो, इसलिए ये मुजक्कर ही है। खलीफा बारक, बारक, मर्द के लिए। जी बिल्कुल जी, मुजक्कर है। रजिया जी प्लीज चेक योर माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रजिया जी, आप नेक्स्ट देखिए। राजुलुन, राजुलुन आदमी, मुजक्कर है। मुजक्कर है। एक और, अत्तालिबातु, अत्वालिबातु मोनस है। मुअन्नस है। बारकल्लाहु फीकी। रजिया जी के बाद किसको अनम्यूट के ऑप्शन गई थी? बुशरा जी आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरियमु, मोनस है मैम। मैम तो मुअन्नस ही है, मरियमु क्या है? मैम मरियम मोनस है। जी। उम्मुन, उम्मुन भी मैम मोनस है। अच्छा ठीक है, बारकल्लाहु फीकी। ओके, तैयबा जी आ जाइए। जज़ाकल्लाह खैर। भैया के लिए आ जाइए तैयबा जी। अच्छा तैयबा, वालेकुम अस्सलाम। इनकमर प्लीज चेक योर माइक। नौरीन जी आ जाइए। जी मेरे सामने। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, अब मुजक्कर और मुअन्नस की पहचान चल रही है। तबीबतुन, तभी बतुन ये मोनस है, क्योंकि अच्छा टाइम मरबूता है इसमें। ठीक है, गुड। आलिमुन, आलिमुन के मुजक्कर है। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ इसकी मुअन्नस बनाए तो कैसे बनाएंगी? ये होगा आलिमतुन। शाबाश, एक्सीलेंट। अच्छा, अब मैं किसी और को बुलाती हूँ। बारकल्लाहु फीकी। दो दो जी आने पे ना मुझे। जी आजिए शहनाज जी, आप म्यूट कर लें। नौरीन हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। शहनाज जी प्लीज चेक योर माइक। सॉरी, आप फिर म्यूट होंगे, आप चेक कीजिए प्लीज।
आ जाइए। फल्लाहुन किसान को कहते ये हैं। मुझे जी मुजक्कर है। गुड। बाबुन डोर दरवाजा। जी ये भी मुजक्कर। ओके। बारकल्लाहु फीकी। आ जाइए अतिया जज़ाकल्लाह। प्लीज बताइए कि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी देखिए, अनफुन। अनफुन ये कोई बॉडी पार्ट्स है ना? हाँ जी जी। नाक नोज। ये मुजक्कर है। गुड। कैसे कहा आपने मुजक्कर है? क्योंकि जो आपने अभी बताया तो उसमें पेयर्ड होने चाहिए बॉडी पार्ट्स, जो मोनस एक्सीलेंट। समाई मोनस। वेरी गुड। बात। कमरुन। कमरून मुजक्कर, जी सॉरी मोनस है, समाई मोनस, जी मुतफर्रिक उसमें है। जी बिल्कुल। यदुन हाथ। यदुन, ये भी उसमें ये मोनस में है, समाई। बिल्कुल। नारुन। नारून भी समाई मोनस। चलें वेरी गुड, आपके हिस्से में तो सारे ही आ गए आज। ठीक हो गया जी। हाँ, अब यहाँ तक ये, अभी आपने म्यूट नहीं करना। ये हमारा यहाँ तक आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह जेंट्स यानी जेंडर का कंप्लीट हो गया। हमने पूरा टॉपिक अपना अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया। आ, मुझे ये बताइएगा कि इस जो हमने अभी किया था, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना है सिफात को, तो उसका क्या स्टेप्स हमने लिए थे? अतिया जी। आपका म्यूट तो नहीं हो गया अतिया जी? ओके, तहजीब आप बताइए मुझे कि किसी भी मुज़क्कर सिफ्त को मुअन्नस बनाना हो तो हम क्या स्टेप्स लेंगे? तहजीब जी प्लीज चेक योर माइक। ओके। सना। सना पसी। सना प्लीज चेक योर माइक। जी सना बताइए। सना म्यूट क्यों किया बच्चे? आप देखिए सना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा ये बताइए, किसी सिफ्त को मुअन्नस बनाना हो, मुज़क्कर सिफ्त को मुअन्नस बनाते हैं तो क्या स्टेप्स लेंगे, मुझे बताइए। तनवीन को हटाकर जबर लगा देंगे और आगे ताए मरूता लगा देंगे। ओके गुड फाइन। अच्छा वेरी गुड। तो चले, अब मुझे आप ये बताइए कि मुअन्नस की कितनी अकसाम है? दो, समाई अलामती। नहीं, बेसिक। सबसे पहले हम मुअन्नस को कितनी अकसाम में तकसीम करेंगे सबसे पहले? किसी और को साथ बुला लेते हैं, आपके पीछे बेबी भी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो और कौन है? तहजीब प्लीज चेक योर माइक। बारकल्लाह फीकी सना, अच्छा बताया आपने माशाल्लाह। चले समीना जी प्लीज चेक योर माइक। क्या बात है, आप लोग से म्यूट क्यों हो जाएगा बात में? नेटवर्क इशू लग रहे हैं। चले हम अपने लेक्चर को यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी शौकत आरा जी, मुझे आप बताइए मोनस की कितनी अकसाम है, तो किस तरह हमने उसको। दो अक़साम, जी दो बताइए। मेन दो अक़साम है। एक हम्म। हकीकी मुअन्नस और गैर हकीकी मुअन्नस। एक्सीलेंट। अच्छा, अब गैर हकीकी को हमने आगे किन ब्रांचेस में डिवाइड किया, उसकी कौन सी दो आगे अकसाम थी? समाई मुअन्नस, और अलामती मुअन्नस गुड। और ठीक है, बारकल्लाहु फीक। समाई। जी बारकल्लाहु फीक, अच्छा बताया माशाल्लाह आपने। माशाल्लाह, अभी सुना लेक्चर और अभी बता दी। खदीजा प्लीज चेक योर माइक। सोबिया राजा, इसके बाद मैं आपको बोलूँ। मैंने आई सोबिया आप आई का पता नहीं। सोबिया जी। जी जी मैम। हाँ जी। अभी मुझे ये आप बताइएगा
कि समाई मोनस के बारे में मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है? सिमाई मुअन्नस जो है वो उसकी डेफिनेशन तो यही है कि जो अहले जुबान या अहले अरब हुए वहां पर जो बोला जाए उसको जो है वो सिमाई मुअन्नस कहा जाता है, यानी उनकी जुबान में वो लफ्ज जो है वो मुअन्नस जो वो कंसिडर किया जाएगा, तो वो सिमाई मतलब मुअन्नस है। जैसे उन्होंने मोनस कह दिया तो वो मोनस है, ठीक है। उसके लिए जी उन्होंने रूल नहीं बनाया, उसके लिए उनके पास उन्होंने कोई उसमें अलामत नहीं दी, कुछ नहीं, ठीक है ना। बस आपने इस तरह से याद रखना है कि जिसे अहले अरब लिखते और बोलते, मोनस लिखते और मोनस बोलते, बस ठीक है। इससे आप इतनी सी बस ठीक याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को ठीक। लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। बाकी हम क्लास प्रैक्टिस जारी रखेंगे इंशाल्लाह। गूगल एक्सरसाइज फॉर्म आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। क्लास को आज हम देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़े हैं अपने, तो देखिए आज हमने क्या सीखा। आज हमने जिन्स यानी जेंडर सीखी, मुज़क्कर मोनस सीखा, मोनस की इकसाम सीखी, मोनस की आइडेंटिफिकेशन सीखी, फिर सिफात को मोनस कैसे बनाया जाता है हमने वो सीखा, फिर अस्मा की मोनस बनाना, पहले हमने सिफात की मोनस बनाना सीखी, फिर हमने अस्मा की मोनस बनाना सीखी। उसके बाद हमने रंगों की मोनस सीखी, ये रंगों की भी मोनस है। फिर हमने समाई मोनस की लिस्ट को देखा और पढ़ा और उसमें से हमने प्रैक्टिस भी की। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। हमने इसम के जो 4 पहलू एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन जिन्हें कहा जाता है उसमें से आज अपना जो एक टॉपिक कह लें जिन्स का, उसे कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको शरह सदर अता फरमाए, आपके वक्त में आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।